हेलो Good morning everyone. Today 27th of May, me Ghanshyam Singh is here to highlight some points and give you a training about a very wonderful topic, that is critical thinking and creative thinking. I hope you all will gain so much knowledge about these two relevant topics and you will be benefited after the training. So I hope and I expect all of you to please focus and give your attention towards the topic. At first, I would like to just review something about the critical thinking. The father of critical thinking is John Dewey. John Dewey. He is known as the father of critical thinking. Now I would like to ask something from our trainees, that what do you understand by the critical thinking? आप critical thinking से क्या समझते हैं? कुछ भी आप इसके बारे में हाईलाइट कर सकते हैं. Anyone? What do you understand about the critical thinking? Well, critical thinking basically refers to the ability to evaluate information and to be aware of the biases or assumptions. It basically identifies and solves problems in an objective and systematic way. मोटी-मोटी बात अगर देखा जाए तो हम किसी भी संस्थान में कार्य कर रहे होते हैं. Either it is the education institution or it is some corporate sector. We need to solve so much problem in that institution. किसी भी संस्थान में अगर कार्य कर रहे होते हैं तो वहाँ हमें बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकते हैं. So to cope up with that situation, we must have critical skill. Critical skill और critical thinking बस ये रेफर करता है कि हम किसी सिचुएशन को कितनी आसानी से, कितनी इफेक्टिवली, कितने सिस्टमैटिक ढंग से हम उसको हैंडल कर पा रहे हैं. If we have the capability to think critical, then we will cope up from the various negative situations. अगर हमारे अंदर वो क्षमता है, अगर हम चीजों को क्रिटिकली सोच सकते हैं, रचनात्मक ढंग से अगर सोच सकते हैं, तथ्यात्मक ढंग से अगर सोच सकते हैं, तो हम किसी भी सिचुएशन से, चाहे वो एजुकेशनल फर्म हो, चाहे वो टेक फर्म हो या कोई और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हो, then we will be able to cope up with that situation. Is it clear to all? Is it clear or should I repeat? Critical thinking. Critical thinking basically refers to the thinking that solves the problem in an analytical way, that solves the problem in an objective way, and that solves the problem in a systematic way. एक तथात्मक ढंग से सीढ़ी बाय सीढ़ी चल के जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, that is known as critical thinking. And I would just repeat, the father of critical thinking was John Dewey. John Dewey was termed as or regarded as the father of critical thinking. Now moving to the next slide. History. How critical thinking came into existence. Critical thinking का concept जो है वो किस प्रकार है और ये concept आने का तथ्य क्या है, मतलब क्या है, क्यों आया ये critical thinking. So there is a short story about the Torrance case. Torrance case. In 1958, 400 children completed creativity task designed by Professor E. Paul Torrance. The children were
सिचुएशन हम कई के साथ आ सकते हैं। इस वाले स्लाइड में जो हम देख पा रहे हैं कि हमारे 1958 में एक बेसिकली कहा जाए तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक स्टडी हुई थी जिसमें लगभग 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उन सबको 400 बच्चे थे, उन सबको एक एक करके खिलौने दे दिए और उन सभी बच्चों को ये कहा गया कि आपको इस खिलौने को इम्प्रोवाइज करना है, आप अपने स्किल का इस्तेमाल कीजिए, आप अपने थिंकर का इस्तेमाल कीजिए और उस खिलौने को आप बेहतर बनाइए। अभी जो एग्जिस्ट कर रहा है उससे आपको और बेहतर बनाना है ताकि वो खेलने में और ज्यादा उस चीज को एंजॉय कर सके। इसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बच्चों ने अपनी स्किल्स दिखाई। कुछ बच्चों ने उसमें ऊपर पंखे टाइप के लगाए, कुछ बच्चों ने उसमें व्हील्स लगाया, कुछ बच्चों ने उसमें और भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए और उनको अपने अकॉर्डिंग उन्होंने मजेदार लगाया कि हम इस चीज को और अच्छे से खेल सकते हैं, इसको और हम एंजॉयबल बना सकते हैं। So this is because of the critical thinking that we should be aware about the situation कि हमें सिचुएशन की डिमांड क्या है और किस प्रकार उससे कोप अप कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उसे और फेवरेबल बना सकते हैं। So this is the basic study done in 1958 by E. Paul Torrance and this was termed as Torrance case. After that, those who came up with more good ideas on Torrance task grew up to be entrepreneurs, inventors, college presidents, authors, doctors, diplomats, and software developers. उन्होंने जो वो टास्क दिया था, वो टास्क जो है उन बच्चों की थिंकिंग को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि वो बच्चों की थिंकिंग है क्या, कैसे वो चीजों को आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं। तो जो भी बच्चों ने उसमें बेहतर परफॉर्म किया था वो लास्ट में एंटरप्रेन्योर्स बने। Do you know what is the meaning of entrepreneur? Entrepreneur basically स्टार्टअप वगैरह जो करते हैं उसको entrepreneur कहा जाता है। तो स्टार्टअप जैसे we came across so many websites or so many apps that we know that Flipkart, Myntra, Facebook, these all are startup and the person who are behind it are known as entrepreneur. Inventor, college president, authors, doctors, diplomats and software developer. ये सब प्रोफाइल से फिर वो लोग ग्रो किए और ये सब प्रोफाइल को उन्होंने कार्य करना शुरू किया because they were aware about the critical skills और the critical thinking कि कैसे हम किसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, कैसे हम चीजों को वहां पे अप्लाई कर सकते हैं so that things will be better. Because in entrepreneurship we should be aware about the situation. Suppose let us take an example of Flipkart. We all know that Flipkart is the e-commerce website that we do shopping. तो Flipkart आज इतना ग्रो कर रहा है तो क्यों कर रहा है? उन्होंने एक स्टडी की क्योंकि एक हमारे यहाँ होती है कि हम अगर किसी शॉप में गए, we buy clothes, in another shop we buy shoes, in another shop we buy some different material. तो हमारा एक सोच होता है कि सब चीज एक जगह पर मिल जाता तो हमारा समय की बचत होती है। फ्लिपकार्ट ने ये सोचा, फिर हमारी एक होती है कि अब चीजों को खरीदने के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है, मोल भाव करना पड़ता है। तो फ्लिपकार्ट ने सोचा कि क्यों ना सारी चीजों को उनके सामने पेश कर दिया जाए, सारी चीजें जो है एक जगह पे मिल जाए, उन्हें घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़े, चीजें उनके पास खुद ब खुद आ जाए। तो ये सब की बात उन्होंने स्टडी किया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का एग्जांपल है कि जो मार्केट स्टडी है, क्या मार्केट में चल रहा है, क्या सिचुएशंस है, उसके बारे में हम स्टडी करें और लास्टली हम एक निष्कर्ष पे पहुंच के उस चीज को इंप्लीमेंट करें, देयर द डिसीजन विल बी बेटर। एम आई क्लियर? इज देयर एनी प्रॉब्लम? So critical thinking is the basically relies on the problem solving. अगर कोई प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, how we are able to solve it. This is
because of the critical thinking. Jonathan Plugger of Indiana University recently reanalyzed Torrance data. The correlation of lifetime creative accomplishment was more than 3 times stronger for childhood creativity than childhood IQ. They are two different things. That is childhood IQ and childhood creativity. ये दोनों चीज अलग है. We often merge these two terms. हो सकता हम क्या करते हैं कि IQ और creativity को हम मिला देते हैं. But these are two different terms. Suppose a student is very good in math. A student is very good in math. It may be possible that he may be weak in some other aspect like painting, dance, music, or other platforms or other things. Next situation, suppose a student is weak in study, but he is very good in art, music, dance, or other aspects. तो ये नहीं है कि जो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है सिर्फ वही क्रिएटिव हो सकता है, या जो बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई में कमजोर है, वो क्रिएटिव नहीं हो सकता. ऐसी कोई बात नहीं है. हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जहां पे the person is not very good at study, but आज वो एक अलग बुलंदी को छू रहा है, एक अलग ऊंचाइयों को छू रहा है. So because of their critical thinking, उन्होंने चीजों को सोचा. We all know about a very good startup that is MBA चाय वाला. बहुत सारे लोग हम लोग सुनते होंगे MBA चाय वाला. MBA चाय वाला is a firm that is founded by two persons. जो उसका co-founder है, he is just 10th pass. MBA चाय वाला का जो co-founder है, उसकी 10वीं पास है. But आज वो अपने साथ चाहे तो कितने क्वालिफाइड लोगों को नौकरी पे रख सकता है. तो कहने का मतलब ये है कि if a person is good in study, ऐसा मतलब नहीं है कि जो सिर्फ पढ़ने में अच्छा है वही सिर्फ क्रिएटिव हो सकता है, वही क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई कर सकता है. So childhood creativity is more stronger than the childhood IQ. Now we are moving to the definition of the critical thinking. Critical thinking is a self-directed process by which we take deliberate steps to think at the highest level of quality. Critical thinking एक ऐसा process है जिसमें हम सीढ़ी by सीढ़ी with the help of steps we move forward and think differently and we move to the highest level of the quality. Critical thinking की help से हम सीढ़ी by सीढ़ी एक step by step आगे बढ़ते हैं और जो highest quality होता है, जो उच्च कोटि की जो क्षमता होती है, we are able to get that. हम उसे achieve करते हैं. Now there is a topic that why is critical thinking important? Critical thinking जो है वो क्यों जरूरी है? As we can see that it helps to improve decision making. ये हमारे decision making को improve करता है. अगर हमें कोई डिसीजन लेनी है किसी भी सिचुएशन में, if we have to take decision, then if we apply the concept of critical thinking, then our decision making process will be improved. तो हमारा जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है, जो तरीका है, वो हमारा कहीं ना कहीं बेहतर होगा, improve होगा. Next, it enhances the problem solving ability. Our critical thinking is based on the problem solving capability. In any organization, as I have just discussed that we need to solve problems. So as to solve this problem, we must apply the critical thinking process to achieve the organizational goals. It also refines our research skills. जो अनुसंधान करने की जो क्षमता होती है, जो रिसर्च करने की जो क्षमता होती है, जो उसकी स्किल होती है, उसको भी
इंप्रूव करने में, एनहांस करने में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा सहायक साबित होता है। इट पॉलिशेस आवर क्रिएटिविटी, जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो हमें रचना माफ कीजिएगा, इट बेसिकली पॉलिशेस आवर क्रिएटिविटी, जो हम कितने ज़्यादा रचनात्मक हैं उसको ये इंप्रूव करने में हमारी हेल्प करती है। इट स्टिमुलेट्स आवर क्यूरियोसिटी, और हमारी क्या जिज्ञासा है, क्योंकि इफ वी हैव द एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग देन वी विल बी क्यूरियस, हम चीजों को जानने में इच्छुक रहेंगे। ऐसा होता होगा हमारे साथ, हम क्लास में जाते हैं, बच्चों को हम कुछ टॉपिक पढ़ाते हैं, उसमें कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनके दो क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन व्हाई, दूसरा क्वेश्चन हाउ। These two words are so much important in an organization like education institution. If a student has to improve his skills, then he must or she must ask these two questions: why and how. क्यों और कैसे। अगर ये चीजों को बच्चों ने अप्लाई करना सीख लिया अपने जीवन में, then it is sure that they will be successful in their life. Not only in studies, but it may be other aspects of life. क्यों और कैसे, इस प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व करें और कैसे सॉल्व करें। The main thing is that कि हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है और कैसे आ रही है, या उस प्रॉब्लम को हम क्यों सॉल्व करें और कैसे सॉल्व करें। These two terms are so much important, that is why and how. And as a science teacher, I basically believe that these two terms are so much important. Why and how, क्यों और कैसे। अगर बच्चों ने ये सीख लिया तो they may be successful in their life. Is it clear to all? If you have any queries, you may ask, or we will move forward. Is it clear? Now, take the chain that is related to the critical thinking. There are 5 synchronization that is shown here. The first one is analyzing, reasoning, evaluation, problem solving, and decision making. Now we will discuss it one by one. Analyzing. At first, we need to analyze something. क्या जो चीजें हमारे पास आ रही है वो क्यों आ रही है, क्या उसका मोटिव है। At first we need to analyze something, and that is known as analysis. उसको कहा जाए तो उसकी विवेचना करनी है हमें कि हम चीजें हमारे पास जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है। नेक्स्ट, रीजनिंग, उस प्रॉब्लम को किस प्रकार सॉल्व किया जाए, इसके लिए क्या क्या मेथड्स हमें लगाने हैं, वी हैव टू यूज दैट। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मींस द आउटकम और द कंसीक्वेंसेस, और एक आगे जिसको हम बोलते हैं कि हम चीजों को इवैल्यूएट करें कि जो भी हमने प्रोसेस लगाया दैट इज करेक्ट, दैट इज अप टू द मार्क और नॉट। इफ द प्रोसेस इज अप टू द मार्क, देन वी विल मूव, प्रोसीड फर्दर और गेट बैक। प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस इज द मेन थिंग दैट वी हैव टू डू। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी चीजें हमारे पास आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रहे हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, उसको हम सॉल्व कैसे करें, एंड टू सॉल्व दिस व्हाट आर द मेथड्स दैट वी हैव टू एम्प्लॉय। एंड द लास्ट वन इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वर्क में, क्योंकि हमने सारी चीजें लगा ली, एनालिसिस कर लिया, रीजनिंग कर लिया, इवैल्यूएशन कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन डिसीजन लेना, कहा जाता है कि जो डिसीजन लेता है दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क उसका ही होता है जो डिसीजन लेता है। सपोज इन अ मूवी, जब एक मूवी चल रहा होता है तो उसमें सबसे लास्ट में जो नाम आता है वो डायरेक्टर का, जिसे हम बोलते हैं निर्देशक, बिकॉज ही इज द पर्सन हु टेक्स द डिसीजन। कहां पे मूवीज में कट लगेगी, कहां पे क्या चीजें होनी चाहिए, क्या इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए, ही मेक्स द डिसीजन। सो डिसीजन मेकिंग इज द की process in the critical thinking process, because all the outcomes rely on the decision making process.
critical thinking, innovative, inventive, unconstrained thinking. It is associated with exploration and ideas. Critical thinking, creative thinking. जब हम क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं तो we must know about what is creative thinking. जो रचनात्मक सोच है वो है क्या? Anyone who are able to answer or who wants to answer this? What is creative thinking? Anyone? What do you mean by creative thinking? Creative thinking से हम क्या समझते हैं? रचनात्मक सोच. Yes. Generating new idea. जो हम हमारे पास जो भी आइडियाज हैं वो तो है हमारे पास, बट हाउ वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. जो हमारा एक दायरा है उस दायरे से बढ़ के हमें सोचना है. बिकॉज वी ऑल नो दैट अ सिंपल पर्सन यूटिलाइजेस ओनली 5% ऑफ हिज ह्यूमन ब्रेन. जो हमारा दिमाग है उसका एक औसतन 4 से 5% हम उसका इस्तेमाल करते हैं. व्हाट अबाउट द रेस्ट 95 and 94%? तो बाकी के जो 94-95% बच जाते हैं उसका क्या? So we have to use that and it requires skills as well as training. जो creative thinking आएगा हमारे पास वो ऐसे एक बार में नहीं आएगा. It requires training, it requires skills and it requires hard work. So when we talk about the definitions of creative thinking includes the process of innovative problem solving from analyzing the facts to brainstorming to working with others. Critical thinking जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं. व्हाटएवर द फैक्ट्स की है, जो भी फैक्ट्स हमारे पास हैं उनको हम एनालाइज करते हैं और उसके बारे में हम चीजों को सोचें. देन वी आर एबल टू थिंक क्रिएटिव. तब हम कुछ रचनात्मक सोच सकते हैं. तब हम कुछ नया सोच सकते हैं. कुछ जो हमारे कन्वेंशनल मेथड्स चल रहे हैं उससे बेहतर सोच सकते हैं. और टुडे इन द प्रेजेंट सिनेरियो वी हैव टू थिंक क्रिएटिव. अगर अभी हमें इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आज के वर्तमान समय में इफ वी हैव टू सस्टेन देन वी हैव टू थिंक क्रिएटिव. हमें क्रिएटिव सोचना होगा. इससे एग्जांपल कुछ भी हो सकता है. सपोज a boy in class 1 or class 2 do a very good painting. अगर एक बच्चा क्लास 1 का क्लास 2 का बहुत ही अच्छा पेंटिंग कर रहा है then he is able to think the things creatively. वो जो भी चीजें उसके दिमाग में है वो तरह तरह के रंग अपने पेपर पे वो भर रहा है. इसका मतलब ये है कि the person or the boy is able to think creatively. वो चीजों को रचनात्मक तरीके से सोच पा रहा है. So this is the basic definition of the creative thinking. Creative thinking relies on the three facts, that is analytical skills, innovation and collaboration. I am repeating this again. Creative thinking relies on three main pillars, that is analytical skills, innovation and collaboration. Analytical skill का मतलब होता है कि चीजों को हम किस प्रकार से एनालिसिस कर रहे हैं, किस प्रकार से चीजों को हम देख पा रहे हैं कि वो जो भी चीजें हमारे पास अवेलेबल है क्या उसके आगे पीछे की चीजें होंगी, कैसे हम चीजों को एनालिसिस कर रहे हैं, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं चीजों को लेके. दिस इज द मेन थीम ऑफ द क्रिएटिव थिंकिंग. नेक्स्ट इनोवेशन. एज माय कलीग हैज टोल्ड दैट थिंकिंग द थिंग्स डिफरेंटली. चीजों को अलग तरीके से सोचना. सो इनोवेशन दिस इज द backbone of the creativity. As we all know that there is a quote. We all have studied that necessity is the mother of invention. आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. जब हमें चीजों की जरूरत हुई हमने इन्वेंशन करने शुरू किए, हमने आविष्कार करने शुरू किए. So this is because of the innovation. हमारे अंदर वो लगन थी, हमारे अंदर वो आग थी, हमारे वो जिज्ञासा थी कि हम चीजों को नए तरीके से पेश करें. सपोज कंप्यूटर की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारे मैनुअली वर्क्स हो रहे थे दे मे कंटेन सम एरर्स. जो डेटा हमारे पास स्टोर हो रहा था हम डेटा को ढंग से स्टोर नहीं कर पा रहे थे, या जो भी प्रॉब्लम्स आर्ट मटेरियल
लोग इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ ना कुछ में प्रॉब्लम्स हो रहे थे, खो गया, फट गया। तो we think differently and we innovate something and make a computer or laptop. So innovation is the key to the creative thinking. And next is collaboration. अगर किसी भी चीजों को हम कर रहे हैं, किसी वर्क में चीजों को कर रहे हैं, तो we need collaboration. Collaboration मतलब कि हम चीजों को कैसे correlate कर पा रहे हैं, कैसे जोड़ पा रहे हैं चीजों को. So that is the basic need of the creative thinking. There is a slide that is creative thinking skill. Brain sketching, mind mapping, attribute listing, functional decomposition, morphological analysis, camper, and synetic. So these are the various creative skills that is needed to improve the thinking skills. That is brain sketching, mind mapping, attribute listing, functional decomposition, morphological analysis, camper, and synetic. The critical and creative function of the mind are so interwoven that neither can be separated from each other without an essential law of both. जो critical और creative thinking होती है, जो critical और creative functions होते हैं, वो इस प्रकार जुड़े हुए हैं, वो इस प्रकार दोनों में जुड़े हुए हैं कि अगर हम दोनों को अलग करते हैं, तो कहीं न कहीं लॉसेस हमारा ही होगा. जो critical thinking और जो creative thinking है, वो इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. They are so interwoven that if they are separated, it may lead to loss. अगर हम दोनों को अलग करते हैं, तो कहीं न कहीं लॉस हमारा होगा. So they must be merged together. They must be think together or act together so that the result and the consequences are better. There are some terms that is related to critical thinking. That is discipline, intelligence, memory training, analytical reasoning, mathematical intelligence, and logical reasoning. When we talk about the discipline, it is the most required thing that is needed in everything. For critical thinking and for creative learning, we must be disciplined. चीजों को डिसिप्लिन तरीके से सोचना है, चीजों को डिसिप्लिन तरीके से यूज करना है, then we will be able to get the required and get the satisfactory result. Next is intelligence. There is a quote that intelligence plus diligence leads to success. अगर आपके पास बुद्धि है और अगर आप मेहनती हैं और अगर आपने दोनों को मिला दिया, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं. So जैसे think that intelligence is so much required for the critical thinking and for the creative thinking. Memory training. Memory training. बहुत सारी चीजें हमें याद रहती है, बहुत सारी चीजें हमें याद नहीं रहती है. So in order to memorize these things, some trainings are there so that our memories efficiency are increased. जो हमारी याद करने की जो क्षमता है, वो बढ़ सकती है. This comes from the training. Analytical reasoning. How to analyze a situation. किसी situation को किस प्रकार से हम analyze करें, that comes under the analytical reasoning. Mathematical intelligence. How we are good in calculation. Because for doing any work in a form, we need some calculation. Mathematics का मतलब सिर्फ जोड़ घटाव नहीं. Mathematics का मतलब होता है perfect calculation. Suppose in a cricket match, एक बैट्समैन हिट करता है तो वो कैलकुलेटिव वैल्यू रखता है कि अगर मैं इतने स्पीड से बैट को चलाऊंगा, इतने जोर से बॉल को हिट करूंगा, तो वी गेट द बेटर रिजल्ट. उसी तरह से एक बॉलर जब बॉलिंग करता है तो वो करता है इतनी स्पीड से बॉल करूंगा, इतना स्विंग कराऊंगा, इतना कट लूंगा, इतने एंगल से उसको मूव कराऊंगा, देन वी गेट द गुड रिजल्ट. तो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी प्लेस. सपोज इन एन एजुकेशनल फॉर्म, मैनेजमेंट जो है वो कैलकुलेटिव होते हैं कि हमें इतने
making something, then the thing that would be made or should be made would be logically correct. अगर हम कोई चीज बना रहे हैं या हम कोई मार्केट कर रहे हैं तो we must be logically correct. हमें logically उसको सही रखना है कि जो हमारी चीजें बन रही है वो सही है अथवा नहीं. Problem solving and enhancing creativity. Problem solving comes so many times because when we talk about the critical and the creative thinking, we must solve so much problem. हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. इसके एग्जांपल मैं देना चाहूंगा. As we all know that water is free. हम सभी को मालूम है कि all have studied that water is a natural resource. It is free of cost. और water हमारे लिए free है, natural resource है, we all have studied. But जब हम कहीं जा रहे होते हैं, कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हमें पानी की वहाँ पे समस्या आनी शुरू होती है. कंपनी ने इसके बारे में सोचा, किसी इंसान ने इसके बारे में सोचा, उन्होंने क्या किया, एक बॉटल लिया, उस बॉटल में पानी को भरा, उसको सील किया, पैक करके बेचना शुरू किया, जिसे आज हम बिस्लेरी, किनली और अलग-अलग कंपनी के नाम से जानते हैं. तो उन्होंने क्या चीजों को सोचा, they had thought that कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है. लोग जब ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उन्हें जब प्यास लग रही है, उन्हें पानी की काफी समस्या हो रही है. क्यों ना हम उनको वो चीजों को अवेलेबल कराते हैं. और आज हम जान रहे हैं कि ये सब कंपनी जो है वो बिलियन डॉलर की कंपनी है. So they had thought of things differently and enhances creativity. So the best thing that we get from the critical thinking and the logical thinking and the creative thinking, that is it enhances our creativity. जो हमारी creativity है, जो चीजों को हम कर सकते हैं, उनमें ये एक बेहतर तरीके से वो उभर कर हमारे सामने आता है. Critically access creativity originates. This is a cycle. ये एक चक्र यहाँ पे चलता है कि अगर क्रिएटिविटी आपका ऑरिजिनेट होगा, अगर रचनात्मकता आप में आएगी, तो नॉर्मल सी बात है, आप चीजों को फिर क्रिटिकल ढंग से सोच सकते हैं, एक अच्छे तरीके से आप उसको सोच सकते हैं, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं. I have just told you why. Here's the question: why? The aim of critical thinking is to promote independent thinking, personal autonomy, and reason judgment in thought and action. The ability to reason well and the disposition to do so. Critical thinking का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? Critical thinking का जो मेन उद्देश्य है independent thinking. हम चीजों को अलग तरीके से सोच सके, अलग तरीके से उसको यूज कर सके, एनालाइज कर सके. तो दिस इज द मेन एम ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजन जजमेंट. अगर हम कुछ भी जजमेंट दे रहे हैं, अगर हम कुछ भी उसके बारे में निर्णय ले रहे हैं, तो वो हमारे एक रीजन होना चाहिए. ये नहीं कि हम हवा में बातें कर रहे हैं, नहीं. दैट मस्ट बी प्रॉपर रीजन फॉर दैट. व्हाई वी एम्प्लॉयड दैट थिंग, क्यों हमने उस चीजों को इस्तेमाल किया, देयर मस्ट बी सम रीजन जजमेंट. दिस इज बिकॉज ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग. Keys to critical thinking, that is RED. R stands for recognize assumption, E stands for evaluate argument, and T stands for draw conclusion. The first one is recognize assumption. Assumption, जब भी हम चीजों को कर रहे होते हैं, जब भी हम कुछ नया बना रहे होते हैं, तो we have to assume something. हमें चीजों को, बहुत सारी चीजों को assume करना होता है कि ये चीजें करेंगे तो ये होगा, ये चीजें करेंगे तो वो होगा, ऐसे नहीं करेंगे तो ये परेशानियां हो सकती. तो these are basically assumptions. Then we have to evaluate the argument. चीजों को ढंग से सोचना है, आर्गुमेंट्स करना है. खुद के साथ भी हो सकता है, या किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है कि हमें what are the pros and what are the cons. The main thing, because each and everything has two aspects, advantages, disadvantages, merits and demerits. So
चीज को रिजेक्ट करने के लिए, then we are able to get better result. And lastly, draw conclusion. Conclusion. जब भी हम चीजों को यूज कर रहे होते हैं, एनालाइज करते हैं, we must be able to conclude something, जिसे हम बोलते हैं उपसंहार और निष्कर्ष. क्या हमारा निष्कर्ष होना चाहिए? जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, जो भी हम मेथड को एप्लाई कर रहे हैं, उसका क्या निष्कर्ष होना चाहिए? We must think about it कि उसका क्या निष्कर्ष है. Rate thinking, higher order executive function, thinking that analyzes, assesses and improves green thinking. Rate thinking is the higher order executive function, thinking that analyzes, assesses and improves green thinking. There is two thinking here, that is keep long term goal in mind, focus on short term progress. ये दो सिचुएशन हमारे पास आता है. पहला, हम छोटी छोटी खुशियों को देखें, छोटे छोटे रिजल्ट को देखें, छोटे छोटे सक्सेस को देखें, हम काफी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं. और जो आगे आने वाला जो हमारा फ्यूचरिस्टिक एक माइंड होता है, वो कहीं ना कहीं हमारा इम्बैलेंस हो जाता है उसी चक्कर में. तो ग्रीन एंड रेड, यहाँ पे दो चीजों को इसलिए एनालाइज किया गया है ताकि हम चीजों में फर्क कर सकें. ग्रीन, कीप लॉन्ग टर्म गोल्स इन माइंड. आगे हमारा जो गोल है वो हमें अचीव करना है, और उसको अचीव करने में कौन सा मेथड वी हैव टू अप्लाई. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द रेट थिंकिंग, दैट रिलायज ऑन द शॉर्ट टर्म प्रोग्रेस. एक छोटा सा प्रोग्रेस हमें मिल गया, हम उसी में संतुष्ट हो गए, उसी में खुश हो गए, आगे के बारे में हमें सोचना नहीं. वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. क्या फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए वो हम उसके बारे में नहीं सोच रहे. क्या हमारा विजन होना चाहिए, हम आगे की चीजों को नहीं देख पा रहे. So this is the basic difference between these two red and green terms. Red thinking, it relies on the various steps, that is probing, self-correcting, self-accessing, seek the truth and discipline. It relies on the various five facts, that is probing, self-correcting, self-accessing, seek the truth and discipline. When we talk about the self-correcting, हो सकता है कि जब हम चीजों को बना रहे हैं, किसी चीजों को हम एनालाइज कर रहे हैं, तो हम अपनी गलतियों को खुद स्वीकार करें कि हाँ यहाँ हमसे गलती हुई है, ये चीजें ऐसे नहीं होनी चाहिए, हम अपने आप को सही करें, अपने आप को करेक्ट करें. Then we are able to get better results. Self-accessing, अपने आप का आकलन करना है, जिसको हम बोलते हैं आत्म आकलन. हमें खुद का आकलन करना है कि जो हमने किया, क्या वो अब सही है, क्या वो गलत है, क्या उसमें और बेहतर तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं. सीख कर जो सच्चाई है उस पर हमें काम करना है. We should not lie from ourselves. खुद से हमें झूठ नहीं बोलना है कि हाँ जो हमने कर दिया वो बिल्कुल सही था, चाहे वो डिसीजन गलत ही क्यों ना. We must correct ourselves, we must learn from ourselves. हमें खुद से ही सीखना है. कहा जाता है कि जो बेस्ट लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो खुद से बहुत सारी चीजें सीखते हैं कि वो पास्ट में कितनी गलतियों को उन्होंने दोहराया और आज वो क्या कर रहे हैं. If we are able to get that small thing, we will get better. And discipline, for running any organization in any field, discipline is so much required. If discipline is not with us, then there is no need for anything. All the things are in vain. Green thinking. Green thinking also relies on some facts, that is subconscious, unanalyzed, impulsive, uncontrolled and spontaneous. It also relies on five facts, that is subconscious, unanalyzed, impulsive, uncontrolled and spontaneous. Critical thinking. When we talk about the education form, there is a difference in the critical thinking and for creative thinking. Critical thinking is for science and math. Subjects like
चीजें कैसे होगी, ये चीजें क्यों होगी, हाउ टू सॉल्व अ मैथ एंड व्हाई टू सॉल्व अ मैथ, these two things are so much important, why to study science and how to study science, these two things are so much important। मैथ के बारे में बच्चों में एक प्रॉब्लम होती है कि हम चीजों को सॉल्व करें, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, रियल लाइफ एप्लीकेशन हमारा क्या है, sin थीटा cos थीटा tan थीटा sec थीटा cosec थीटा cot थीटा जो भी हमने पढ़ा, क्या उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन, उसका रियल एप्लीकेशन है हमारे पास। तो एक स्टूडेंट को ये चीजें एनालाइज करवानी होगी, ये चीजें बतानी कि व्हाट इज द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट। When we talk about the science, what is the real life application of the motion, what is the real life application of the speed, velocity, gravitation, we all have to think these things in an effective way। चीजों को हमको इफेक्टिव तरीके से सोचना है कि क्या उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन है। Now when we talk about the creative thinking, it comes in the art and humanity। creative thinking हमारे आर्ट में कि चीजों को अगर पेंट करना है, कलरिंग करनी है, पेंटिंग करनी है, तो हम कितना उसमें अपना दिमाग इस्तेमाल करके कितना रचनात्मक हो सके, उसमें हम अलग अलग तरह के कलर भरते हैं जो जीवन के हमारे रंग से भर सकते हैं। तो इट कम्स अंडर द क्रिएटिव थिंकिंग। ह्यूमैनिटी, जो भी ह्यूमैनिटीज के पेपर होते हैं, जो हमें उसमें डिसीजंस लेने हैं, तो वी हैव टू बी क्रिएटिव इन दैट। क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग कैन and should be applied to any subject, content or topic। Just I have just discussed that critical और creative thinking को आप कहीं भी किसी subject में किसी भी problem में apply कर सकते हैं for getting the required and better result। अगर हम चीजों को analyze कर पाए, critically चीजों को सोच पाए, creative तरीके से सोच पाए, तो हम किसी भी problem में उसको analyze कर सकते हैं। There is a chart that is given here that are various numbers, analytical skills, logic, creativity, imagination, emotional intelligence, expression, languages, all things are given। यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है, इसमें नंबर्स के बारे में कुछ चीजें की जा रही है, इंटेलिजेंस के बारे में किया जा रहा है, एक्सप्रेशन के बारे में बताया, इमेजिनेशन कैसे डेवलप होगा हमारा, इमेजिनेशन कैसे डेवलप होगा, देन हाउ वी मे बी इनोवेटिव, हाउ वी मे बी क्रिएटिव। तो दिस इज चार्ट रिगार्डिंग दैट कि हाउ वी मे बी क्रिएटिव, कैसे हम चीजों को क्रिएटिव बन सकते हैं, कैसे रचनात्मक हम चीजों को बना सकते हैं, कैसे चीजों को हम सिखा सकते हैं। There is a question that creativity is the right brain activity, maybe yes, maybe no। क्या क्रिएटिविटी सिर्फ दिमाग का काम है? हो सकता है कि जिससे कहा जाता है कि जिसका ब्रेन काफी तेज शार्प है वो ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है, हो सकता है कि जिसका ब्रेन शार्प नहीं है वो भी क्रिएटिव हो सकता है। तो the answer is hypothetical, the reason may be yes or the reason may be no। It depends upon the various situations that I have just discussed that। हो सकता है कि a student is very good in study but is not good in other activities of the school or the life। It may be possible that the student is not good in studies but he is so much creative। It may be possible that the student is not good in studies but he is very so much creative। और हम ऐसे बच्चों से कहा जाए तो रोजाना मिलते हैं, हम उसे नकार दें, इग्नोर करते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट मिलते हैं। तो एज ए टीचर इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू बूस्ट आवर। एज ए टीचर ये हमारी जिम्मेदारी है, हम उसे बूस्ट करें। इफ he is not good in study but if he is good in other aspects of his life, तो we must encourage him, हमें उसे encourage करना चाहिए कि हाँ अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट है, आप इस चीज में क्रिएटिव हैं, बिल्कुल आप मेहनत कीजिए, आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एम हुसैन का नाम सुना होगा, एम हुसैन द फेमस पेंटर, मकबूल फिदा हुसैन इस फुल नेम। उनके बारे में कहानी है कि मकबूल फिदा हुसैन जो है उनके माँ बाप को पसंद नहीं था कि वो पेंटिंग करे, बिल्कुल उनको पसंद नहीं था कि वो पेंटिंग करे। आज की जनरेशन की तरह आज के माँ बाप की तरह उनकी भी वही सोच थी, चाहे पेंटिंग करके क्या करेगा नहीं करेगा,
ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें बूस्ट करें। तो इट इज बिकॉज ऑफ द क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। नो, because creative thinking requires divergent thinking and then convergent thinking. Creativity requires constant shifting between right and left brain activity. Creative thinking is divergent and convergent thinking. There are two terms, that is divergent and convergent. Divergent thinking क्या होता है कि चीजों को केंद्र से दूर सोचना, मतलब कि जो बोला जाता है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, कि हम चीजों को सोच रहे हैं, हमारा दायरा है, उससे बाहर हम जाकर चीजों को सोच पाए। That is divergent thinking and convergent thinking कि उस दायरे से बाहर निकलने के बाद जब आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा तो फिर उस दायरे में आपको वापस लिया। That is the convergent thinking। ये एक पॉइंट से शुरू होता है, दिस इज द पॉइंट, इस पॉइंट से हम दूर लेके जा रहे हैं चीजों को, देयर दैट इज डायवर्जेंट, और उस दूर से फिर से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं, दैट इज कन्वर्जेंट। तो दिस इज द key feature of the creative thinking, that we are able to think things in a convergent as well as in a divergent, and creativity requires constant switching between the right and left brain activity। जो हमारा ब्रेन जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कहा जाता है कि इसमें दो सेक्शन होते हैं, लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन। तो कंटीन्यूअस उसमें शिफ्टिंग होनी चाहिए, जो भी चीजों को हम सोच पा रहे हैं, जो भी चीजों को हम एनालाइज कर पा रहे हैं, देयर मस्ट बी constant shifting in the brain, that is in the left brain and the right brain activity. Then we are able to think creatively. Creativity can be taught। क्या creativity को पढ़ाया जा सकता है? Practicing promote more creative learning। तो अगर if we have to be creative, if we have to be creative, then it requires some training and it requires practice। अगर हम चीजों को लगातार जैसे मान लेते हैं कि अगर हमें पेंटिंग करनी, हमने पहला दिन पेंटिंग किया, we are not able to get the required result। हो सकता है कि हमें बेहतर से नहीं किया, बट अगर कंटिन्यू लगातार हम उस पे काम कर रहे हैं, लगातार अपने स्किल्स का यूज कर रहे हैं, चीजों को नए नए तरीके से सोच सकते हैं, तो इट मे बी पॉसिबल दैट यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स देन बिफोर। तो हो सकता है कि जो प्रीवियस वाले में हमारा रिजल्ट आया था उससे बेहतर हम चीजों को सोच सकते हैं। तो creativity can be taught by practicing, that is it promotes the learning ability of the person। Now there are some strategies for teaching critical and creative thinking। There are four steps here: fluency, flexibility, originality, and elaboration। Fluency, thinking of and listening of many ideas। जब हम किसी वर्क पे कार्य करते हैं, then we get so much ideas। हमें बहुत सारे आइडियाज वहाँ पे आते हैं, उसके बारे में हम लोगों से सलाह भी लेते हैं, हम सोचते भी हैं, तो that comes under the fluency। Flexibility, thinking from different perspectives। जब हम चीजों को सोच पाए तो अलग-अलग डायमेंशंस में हम सोच रहे हैं, अलग-अलग पर्सपेक्टिव के बारे में सोच रहे हैं। What are the various cons? What are the various pros? So that comes under the flexibility। Originality, that comes with the unique idea। वो आइडिया हमारे पास आए that should be unique, बिल्कुल वो अलग होना चाहिए, जो जिससे उससे पहले हमने उसके बारे में सोचा है। If we are able to get that, then it would be said that we are on the path to become creative। And last one is elaboration, that is building upon an existing idea, that is adding detail। कि जो भी हमारे पास existing ideas है, जो भी हमारे पास facts है, उसको हम और बेहतर किस प्रकार कर सकते हैं, किस प्रकार उसको हम चीजों को ऐड करके उसको हम और बेहतर बना सकते हैं, that is adding detail। Now, role of a teacher। Creative or thinking is a skill that young minds will need
students will need to obtain, understand, and analyze information on a much more efficient scale. It is our job as educators to equip our students with the strategies and skills they need to think critically in order to cope up with tech problems and obstacles they face elsewhere. Our role is discussed here. We are known as educators. We educate the people to become better. तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि हमारा जो जॉब है एज ए एजुकेटर कि हम अपने बच्चों को इस प्रकार से ट्रेन करें, इस प्रकार से उन्हें स्किल्स दें, इस प्रकार की स्ट्रेटजीज हम दें कि वो जो भी उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आए या जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उनको वो किस प्रकार से हैंडल करें, किस प्रकार से वो अपने सिचुएशंस को हैंडल करें. एज एन एजुकेटर इट इज आवर so it is our duty that we must teach our students to become better, to think that thing differently and to be creative as well as to analyze the critical thinking. Now there is a form or an assessment form that has been given to you, so I request all of you to please fill up that in 5 or 10 minutes, then we will move to our topic.
there are three basically characteristics of the critical thinking and creativity, that is innovation, knowledge and people. Innovation means basically thinking out of the box, कि हम जो हमारा दायरा है उससे अलग सोचें, उससे बेहतर, जो हमारी दायरा है उससे बेहतर सोचें, चीजों को हम नया इनोवेट करें, नई चीजों का इजाद करें, that is innovation. Knowledge, for doing that we must have specific knowledge of the thing. कुछ इनोवेट करने के लिए हमारे पास चीजों की नॉलेज होनी बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है. If we do not have knowledge of the particular topic or the particular aspect, then all the things will be in vain. तो सारा का सारा चीज जो है वो बेकार जाएगा. I would like to add something that our knowledge must be constructive. Our knowledge जो है वो रचनात्मक होना चाहिए, ना कि विनाशकारी. Our knowledge must not be destructive. क्योंकि अगर knowledge हमारे पास destructive होगा तो it would be a great challenge or a great disaster for us. Lastly, people are the main aspect, because for doing any research, for doing anything, we are working for the people. हम लोगों की हित के लिए कार्य करना चाह रहे हैं, लोगों की हित के लिए चीजों को करना चाह रहे हैं, तो लोगों को ध्यान में रखते हुए हमें चीजों को सोचना है, चीजों को बनाना है, so that most of the people, maximum number of the people get benefited from that. There are some key terms, that is science, technology and innovation. Science and technology, विज्ञान और प्रौद्योगिकी. Science, as we all know that science is a collection of various research and observation, and science is also known as the study of why and how. जो भी knowledge हमने gain किया, जो भी knowledge हमारे पास है through various channels of observation and experiment, that is known as science. क्योंकि science में जो भी हम बातें करते हैं, that is there are two facts. Number one is observation and number two is experiment. वहाँ पे हम किसी बात को सिर्फ ऐसे हवा में नहीं बोल सकते, वहाँ पे हमारे पास तथ्य होने चाहिए, वहाँ पे हमारे पास प्रूफ होना चाहिए. Technology, with the help of science, we come across a lot of technology. आज हमारे पास अलग-अलग तरह की टेक्नोलॉजी है. आज हमारे पास स्पेस टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है. तो ये सारी चीजें हो पाया इसकी वजह से, साइंस की वजह से. और साइंस की भी इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, क्योंकि हमने चीजों को रचनात्मक तरीके से सोचा कि हाँ हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है. नेक्स्ट इज इनोवेशन. जब हम साइंस और टेक्नोलॉजी को जब मिला देते हैं तो देन वी आर एबल टू इनोवेट सम न्यू थिंग. तब हम चीजों को नया कुछ इनोवेट करने की क्षमता हमारे अंदर आती है. There is a great saying of Albert Einstein that imagination is more important than knowledge. कि जो imagination है, जो हमारे सोचने की जो क्षमता है, वो knowledge से, जो जानकारी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है. क्योंकि अगर if we are able to think the thing differently, then it may be possible that thing will come into real life existence. मान लेते हैं अगर हमें घर बनाना है, तो घर बनाने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि घर हमें कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है और किस तरीके से बनाना है, क्या उसमें फीचर्स होंगे नहीं होंगे. अगर हमने चीजों को सोचा तो ही हम उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. तो इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इमेजिनेशन. अगर हमारे पास चीजों को सोचने की क्षमता है, then we are able to get whatever we want. Now I would just like to conclude my training session that we must be able to think critical and we must be creative. हमें critical सोचना है और creative learning को approach करना है. Critical learning और creative learning की तरफ हमें अग्रसर होना है, because it is the need of the future. अगर हम चीजों को creative सोच पा रहे हैं, then we are able to get whatever we want.
Thank you so much. Now, this is the session. I would like to end. Me, Ghanshyam Singh, on the behalf of Black Diamond Public School, want to thank all our faculty, all our teachers, including our principal and all the guests to sit here and learn whatever I gave you. So I would like to thank